Welcome to the second lecture of this NDA series. With our first chapter, which we have started, that is nothing but set theory. This is the lecture number 2. Okay, so before going to the next phase of this set theory, let us revise up to what we have covered in last classes. So we start with, first of all, what is a set? A set is a collection of well-defined objects. A set is a collection of well-defined objects. Okay, we have seen how do we represent set. We have seen in roster form as well as the set builder form. In roster forms, we note down all the elements inside a bracket, and we just write it down. Whereas in set builder form, we used to define the elements. We take a variable x and we used to define all the elements on basis of this x. Okay, so like a set of odd numbers, we have defined 2n plus 1, where n will be between 0 to infinity and n belongs to whole number. Okay, so like prime number also, x is a prime number. We have defined we have given that the element x, where x can be a prime number. Okay, so all prime numbers can be put down into that. Okay, so set builder form is also clear. We have also seen various type of sets, like we have seen null set, okay, singleton set, finite set, okay, etc. Okay, we have, and after that we have seen infinite set, equivalent set. Okay, and what is equivalent set? Two sets are said to be equivalent if when they have same number of elements. लाइक इक्विवेलेंट तभी कहेंगे, लाइक मान के चलो कि इक्विवेलेंट सेट का एक एग्जांपल अगर बोलेंगे तो एक सेट ए है, ओके, दैट कंसिस्ट ए बी सी एंड डी, और दूसरा सेट बी है दैट कंसिस्ट 1 2 3 एंड 4. इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, so they are said to be equivalent set. Okay, so that we have seen when cardinal number will be same, then the sets are said to be equivalent. Okay, so we have seen this. Okay, now after that equal sets में ये वो हमने बताया था कि equivalent तो होगा ही, number of elements will be same, but along with the number of elements, along with that the element should also be same. Like here three elements, okay, equivalent we can say, because number of elements are same, cardinal number are same, we can say it is equivalent. But what is the major role in like defining that equal sets को, like equal sets कैसे different होता है equivalent से? यहाँ पर elements भी same हो जाते हैं. Well, elements two must be equal. like 1 3 4 है, इसमें 3 1 4 हो गया या 4 1 3 हो गया. okay, so या 1 3 4 ही हुआ, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स भी सेम है. ओके, इसमें सारे एलिमेंट्स भी सेम है और इनका कार्डिनल नंबर भी सेम है. सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से दैट द सेट्स आर सेट टू बी इक्वल. ओके, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ए बी सी एंड डी एक सेट, और दूसरे सेट में बी सी ए डी. तो अगर देखेंगे तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, और इसमें ए B, B, C, C, and D, all elements are also same, so we can say that this set is equal. And we have said there that all equal sets are equivalent, whereas all equivalent sets need not to be equal. Okay, so we have seen that also. We have seen also subsets, like what is a subset. Okay, so after that, after this subset we have also seen like what is a power set वगैरह. Okay, so like subset, what is a subset is a part of a set. ठीक है, as an, and we can say that like let A be a set A B C D E and B be a set B C D. So we can say B is a subset of A. B is a subset of A means B के सारे elements किस में होंगे? A में होंगे for sure.
B के सारे एलिमेंट्स A में होंगे तो हम लोग बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A, लाइक हियर BCD एंड हियर सी BCD, तो B के सारे एलिमेंट्स किस में है, A में है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। ओके, लाइक यहाँ पर P इज अ सबसेट ऑफ Q, वाई 1 2 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, सो वो P पूरा का पूरा P किस में है, Q में है, तो P इज अ सबसेट ऑफ Q। ओके, so we have seen this. So number of, yeah, like this is the important thing which we have seen, number of subsets present in a finite number of sets containing n elements। अगर किसी एक सेट में 7 एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं, तो 2 टू द पावर ऑफ 7। ओके, किसी में 8 एलिमेंट्स है तो उसमें टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर ऑफ 8। ओके, सो 2 टू द पावर ऑफ, अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर ऑफ n। Okay, so this is the important thing which we have noted down in this. Okay, now subset of A, we have like 5, we know empty set is the subset of all the sets। So ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर देखा। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए कि अगर 6 एलिमेंट्स है तो टोटल कितने सबसेट होंगे। देन वी हैव सीन सुपर सेट, लाइक अगर P के सारे एलिमेंट्स Q में है तो हम लोग बोलेंगे P इज अ सबसेट ऑफ Q। P के सारे एलिमेंट्स Q में है तो P इज अ सबसेट ऑफ Q एंड Q इज अ सुपर सेट ऑफ P। सो बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ओके, तो अगर मान के लो कि P इज अ सबसेट ऑफ Q, तो दिस इज कॉल्ड एज सबसेट एंड दिस इज कॉल्ड एज सुपर सेट। So we have seen this one also. So this thing was also clear. Okay, total number of subset 2 to the power of n, total number of proper subset is 2 to the power of n minus 1। यहाँ पर जो एक माइनस होता है वो कौन सा माइनस होता है, that set itself, that set itself means अगर 1 and 2 सबसेट है तो इसका हमको पता है 2 to the power of n होगा, so 2 to the power of 2 मतलब जो 4 सबसेट होगा, तो प्रॉपर सेट सबसेट कितना हो जाएगा, 4 minus 1 that is equals to 3। सो यहाँ पर एक जो माइनस हो रहा है वो क्या है, तो वो अगर 1 और 2 है तो एक तो होगा यहाँ पर 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और दूसरा होगा 1, 2। सो दिस इज 1, 2 इज इक्वल टू एज द सेट इट सेल्फ। सो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअली दिस इज एवरी टाइम बीइंग माइनस, सो दैट इज इक्वल टू द पावर ऑफ n minus 1। प्रॉपर सबसेट का ये होता है फॉर्मूला। Okay, universal set we have seen you। Okay, now the next important thing was power set। power set मतलब सारे subsets का, अगर कोई एक सेट A है उसका पावर सेट मतलब उसका जितना भी सबसेट हो सकता है सबको एक ब्रैकेट में डाल देंगे तो वो उसका पावर सेट होता है। तो इसका टोटल पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होते हैं, देयर आर 2 टू पावर ऑफ n एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो अगर पावर सेट में एलिमेंट्स का पूछा जाए तो ये पूरे के सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, जितना सबसेट पॉसिबल है इस ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए सबको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो मान के चलो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू पावर ऑफ n होता है, तो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 टू पावर ऑफ n एलिमेंट्स। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। ओके, सो आफ्टर दैट we have seen like some of the important properties। Okay, some of the important properties of the sets, like A is a subset of itself। Okay, phi is subset of like null set is a subset of all the sets, all sets are subset of universal sets, and if A is equal to B, so A is a subset of B and B is a subset of A। Okay, so we have seen like Venn diagrams। Okay, like Venn diagrams we have seen some properties also like we have seen also the properties of some Venn diagrams। Okay, like in Venn diagrams we have seen like how a universal set is represented by a rectangular box, whereas set A, set B and the other sets how they are represented। Okay, we have also seen how the intersection of sets are done, intersection of sets are done। Okay, so we have also seen union of sets operations, we have seen intersection of sets। Okay, union of sets we have seen। Okay, like A union B means A or B का total elements we have united। Okay, so that is A union B।
वी हैव सीन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, मतलब उन दोनों में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में क्या कॉमन है. ओके, so that we have seen. Okay, disjoint of set we have seen how a set is disjoint. Then difference of two sets we have seen how a minus b and b minus a will look like. a minus b means a टोटल का टोटल a, उसमें से b का अगर कुछ भी एलिमेंट्स आएगा जो a और b में लाइक कॉमन भी है तो उस कॉमन एलिमेंट्स को हटा देंगे तो सिर्फ a वहीं बचेगा जो b में नहीं होगा. ओके, सो दिस वी हैव सीन. Okay, symmetric difference also we have seen. Symmetric difference was one of the also important topics. Okay, symmetric difference. Symmetric difference मतलब अगर symmetric difference of two sets अगर पूछा जाएगा तो a minus b a union b minus a. Okay, this is the symmetric difference. So this is the symmetric difference which you have to learn about. अगर a और b कोई है, a और b कोई है, like यहाँ पर we have seen a is 1 2 3 and b is 3 4 5. So a minus b, a minus b क्या होगा 1 2 and b minus a क्या होगा 4 5. ओके, सो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा a minus b union b minus a, so 1 2 4 5. So this is the symmetric difference of set. Okay, so this is the most important. Okay, we have also seen complement of set. Complement means nothing irrespective of that set, the other thing. Okay, so now let us go through the let us go through the lecture, the second lecture. Let us start through the second lecture. Okay, and we'll start with like laws of algebra of set. Okay, we'll start with laws of algebra of sets. Okay, laws of algebra of sets. Like first thing which you can see here, okay, that is idempotent laws. Okay, first law is idempotent laws. Idempotent laws means we will like, okay, so idempotent laws means here we'll like how like a union a is a or a intersection a is a. Okay, what does it mean to say? If we see a Venn diagram of both the things, ये A सेट है, A सेट का यूनियन अगर A सेट के साथ करे दोबारा, ओके, सो दैट विल गिव माई A सेट इटसेल्फ. A प्लस ए विल ऑलवेज गिव A. मतलब इसमें अगर 1 2 3 4 5 है और एक और वापस हम 1 2 3 4 5 करेंगे तो इसमें एलिमेंट्स अभी 5 ही रहेगा ना, 1 2 3 4 5 ही रहेगा. ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आएगा. और ये A सेट है और ये भी A सेट है, इन सब में कॉमन क्या है तो A ही है. सो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉस. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉस. इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट laws. Okay, now second thing, that is identity law. Identity laws. Here in identity laws we'll see here like the first thing is a union phi. मतलब a एक एलिमेंट है उसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, लाइक फाई एम्प्टी सेट डालेंगे तो वो मेरा ए ही देगा, क्योंकि जो फाई है वो एक हर एक सेट में प्रेजेंट होता है. लाइक वी हैव सीन दैट प्रॉपर्टीज में क्या पढ़े थे, फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट, मतलब फाई इज प्रेजेंट इन ऑल सेट्स. तो फाई ए सेट में फाई ऑलरेडी है और इसके साथ फाई जोड़ेंगे तो ये ए ही देगा मेरे को. ओके, सो दिस इज द आइडेंटिटी लॉ. ओके, सेकेंड थिंग, ए इंटरसेक्शन फाई विल गिव फाई. ए में भी फाई है, ठीक है, और इंटरसेक्शन फाई, तो इसमें कॉमन क्या हो गया, इसमें ही फाई है इसमें ही फाई है, तो ये हमको इंटरसेक्शन मेरा कॉमन बताता है. ओके, दिस इज द इंटरसेक्शन एंड इट गिव्स कॉमन. कॉमन क्या है, फाई इसमें है इसमें ही फाई है, ठीक है, इसमें सिर्फ फाई है और इसमें फाई के साथ भी एलिमेंट्स है, तो इसमें कॉमन मेरा क्या आ गया, तो सिर्फ फाई. सो ओके, सो ए इंटरसेक्शन फाई इज फाई. ओके, सो नाउ थर्ड थिंग विच गिवन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट. मतलब यूनिवर्सल सेट ये पूरा
ये पूरा इसके अंदर जितना भी है ये सारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो कॉमन क्या हो गया, तो सिर्फ ए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लुक हियर, ये मान के चलो कि ये यूनिवर्सल सेट है। द कंप्लीट थिंग इज यूनिवर्सल सेट। ओके, complete thing is universal set, and here we are just like we'll take another color. Okay, now we'll, so here we'll see here like here intersection, like if we see this one, this complete a, ये complete चीज तो मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इसमें जो ये मेरा a हो गया, दिस थिंग a, सो ये इस a को अगर हम लोग देखेंगे तो ये a मेरा कॉमन हो जाएगा, लाइक यूनिवर्सल सेट तो कंप्लीट है और ये a हो गया मेरा सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट तो कॉमन है और ये मेरा a हो गया सेट, ये मेरा a क्या है, सेट है। पर इसमें देखेंगे तो कॉमन मेरा क्या हुआ, तो कॉमन मेरा हो गया ये a itself. Okay, so a intersection universal set will give a. Okay, so now next thing, a union of universal set. Fourth, a union of universal set will give universal set. मतलब ये यूनिवर्सल सेट था कंप्लीट, इसके साथ हम a जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़े तो एक्चुअली मेरा यूनिवर्सल सेट ही आया, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स ए इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर भी वो वाला प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे। वो वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगाएंगे। दैट प्रॉपर्टी विल कीप लाइक all sets are all sets are subset of universal set, all sets are subset of universal set। तो यहाँ पर a is a subset of universal set, so a union universal set is universal set। So these are the some identities laws which are cleared। Okay, now let us go to the third, that is commutative law। Okay, that is commutative law। Commutative law is nothing but it defines that if A union B is equal to B union A और B के बीच का सारा एलिमेंट्स इज इक्वल टू B और A के बीच का सारा एलिमेंट्स, ठीक है, इज इक्वल। ओके, और कम्यूटेटिव लॉ में ये भी हो सकता है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब A और B के बीच का कॉमन एलिमेंट इक्वल होगा B और A के कॉमन एलिमेंट के बारे में। तो बहुत इजी लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, नाउ फोर्थ थिंग इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉज हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि हम लोग बस इसका पोजीशन चेंज कर देते हैं। A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू, मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है A और B का एलिमेंट्स को पहले हम कंबाइन किए, उसके साथ हम सी के एलिमेंट्स को ऐड किए, ठीक है, यूनियन किए, तो वो मेरा इक्वल होगा कि हम पहले बी और सी को पहले ऐड कर लें और बाद में ए को ऐड करें। ओके, सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ कि लाइक we'll shift the bracket from here to there, the values will not change, okay, the values will be same। ओके, लाइक मान के चलो कि पहले 5 यहाँ पर अगर 1 ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, यहाँ पर 3 ले लें, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये इक्वल होगा 1 प्लस यहाँ पर 2 और 3 5 और 5 + 1 6, दोनों इक्वल देगा। तो यही है एसोसिएटिव लॉस। ओके, तो यहाँ पर भी ये हो रहा है कि एसोसिएटिव लॉ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। सो एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो क्लियर। the like the next thing which like we have to like pay attention here, that is distributive law। Okay, distributive laws, here we have to pay attention. In distributive laws it is clearly written like, see, A union B intersection C। Okay, like let me explain here,
So this law you have to like pay attention here. A union B intersection C, okay, is equal to A union B intersection B यूनियन C. मतलब A यूनियन B, हम यहाँ पर इसमें से A यूनियन B, ओके, और फिर इंटरसेक्शन डालें, फिर A यूनियन C, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जैसे कैसे हम लोग x को लेते हैं दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. ये ऐसा क्यों हम लोग किए कि पहले इसको एक वेन डायग्राम पे समझते हैं. 3 सेट लिए, ओके. A B C, ओके, A B C. इसको एक बार देखते हैं, B इंटरसेक्शन C क्या होगा. B इंटरसेक्शन C, दिस थिंग, इसमें A को जोड़ दिए, A यूनियन, कंप्लीट थिंग. सो दिस इज माई प्रोडक्ट, ओके. अब इसको अगर हम लोग इसके सॉल्व करते हैं तो A यूनियन B, सो A यूनियन B मतलब A यूनियन B मतलब इसको दूसरी जगह दिखाते हैं कि कैसे ये इक्वल है. सेम ड्रॉ किए, A B C, ओके. A यूनियन B, A यूनियन B मेरा क्या होगा, इंटरसेक्शन B यूनियन C, इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. B यूनियन C क्या होगा, दिस थिंग. सो A यूनियन B इंटरसेक्शन B यूनियन C. आखिर यहाँ पर मेरा क्या कॉमन है, what are the things which have come common in that. See, A union B और B union C, B intersection C में क्या क्या मेरा कॉमन है, okay. So the, okay, so if you pay attention here, so we'll get to know how distributive sets are will work under, okay. So this is the first distributive law, okay. Now second thing, second is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C, okay. So here we have actually done a mistake. A union B intersection A union C होगा, okay. So here we have done wrong, so that's why this diagram is going wrong, okay. So actually this is the reason that this diagram is going wrong, so this is wrong, okay. We'll look here, A union A B C. So A union B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C. तो इसमें जो कॉमन होगा वो मेरा ये पार्ट होगा, दिस पार्ट इज कॉमन. So these two are, if you look, is equal. So similarly if you distribute this one also, you will see यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग में मतलब A यूनियन B इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको इसके साथ किए फिर इसको इसके साथ किया, बीच में ये आया तो बीच में इसको डाल दिए. सो A यूनियन B, ओके, A यूनियन B, सो A यूनियन C और बीच में ये आया तो ये डाल दिया. अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व किया तो A इंटरसेक्शन B, सो A इंटरसेक्शन B, फिर A इंटरसेक्शन C, फिर A इंटरसेक्शन C, बीच में यूनियन आया तो यूनियन डाल दिया. सो दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस thing, okay. Now next very important VVIP, so that is De Morgan's law. De Morgan's law. So De Morgan's law पे हम लोग को बहुत लाइक गौर से यहाँ पर ध्यान देना होगा कि लाइक De Morgan's law हमेशा तीन लाइक अगर 3 सेट है, ठीक है, चाहे 3 सेट नहीं भी है तो De Morgan's law क्या बोलता है, De Morgan's law बोलता है कि A यूनियन B
का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को सी भी लिख सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट के लिए एक डैश भी दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा प्रकार का एक डैश भी दे सकते हैं, ए यूनियन बी, यहाँ पर डैश, या सी भी लिख सकते हैं। सो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो ए कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन टर्न हो जाएगा इंटरसेक्शन में। देखो कैसे इस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट इस पे आ गया, ये इंटरसेक्शन बदल गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में और बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बताता है इसको, अगर इसको वेन डायग्राम से किसी एक को समझते हैं। ओके, अगर मान के चलो कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए यूनियन बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के बाकी पूरा, ए यूनियन बी को छोड़ के पूरा। ओके, सो दिस इज द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को हम लोग इक्वल इसको बताया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ओके, इसी को इतना में देखते हैं, विल लुक इनटू दिस, जस्ट वेट। इस ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा, और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये बाहर वाले सारे। अंडरस्टूड? जस्ट वेट फॉर 2 minutes। जस्ट वेट। ओके, जस्ट वेट। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पूरा, ए को छोड़ के ये बी वगैरह सब कुछ, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। अगर इसमें कॉमन देखेंगे तो ये जो ए और बी के बाहर वाला जो पार्ट है वो दो दो बार आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये डी मॉर्गन्स लॉ, व्हाट डज इट स्टेट। डी मॉर्गन्स लॉ को क्लियर हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ विच यू मस्ट नो। ओके, so now some of the things, which are cleared. Okay, so now some of the things, like some of the things which will clear here. Okay, like a minus b union c। okay, a minus b union c, तो एक वेन डायग्राम लेंगे छोटा सा। ओके, विल गो वन बाय वन। a माइनस बी यूनियन सी। ओके, सो b यूनियन c में से b यूनियन c, b यूनियन c में से a को माइनस कर देंगे, ये b यूनियन c है, इसमें से a को माइनस कर देंगे, दिस थिंग a। सो ये b यूनियन c था, इसमें से a को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या बचेगा, दिस पार्ट विल लेफ्ट आउट, इज इक्वल टू a माइनस b, इज इक्वल टू a माइनस b, a माइनस b इतना,
और इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो इतना ही पार्ट बचेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पर भी देख लो क्या हो रहा है, डी मॉर्गन्स लॉ का ही यहाँ पर वो थेसिस लग रहा है। देख लो, ए माइनस बी यूनियन है, यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन में बदल गया, और ए माइनस सी कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, ए माइनस बी यूनियन बदल गया इंटरसेक्शन में, और ए माइनस सी। क्लियर, क्लियर, ओके। नाउ सी हियर, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल गया, और ए माइनस बी, और यहाँ पर हो गया ए माइनस सी। ठीक है, ये भी क्लियर। यहाँ पर ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, या बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए। देखो ये ए माइनस बी, ए में से बी को घटाएं, विल बी इक्वल टू, ये हम हमेशा याद रखना, ए माइनस बी इज इक्वल, इज नॉट इक्वल टू, इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, दिस थिंग यू पे अटेंशन। ए माइनस बी, अगर ये मेरा एक वेन डाइग्राम है, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, तो ए माइनस बी व्हाट विल बी, ए का ये थोड़ा सा पार्ट बचा रहेगा, ये ए है और ये बी है, तो ए में से बी को घटाएं तो बी कंप्लीट माइनस कर दिए, तो दिस इज द ए लेफ्ट आउट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के बाकी पूरा बाहर वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी बाहर वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और उसमें से ये घटाएंगे तो मेरा इतना ही बचेगा। ठीक है, आप ट्राई करके देख लो। बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग यहाँ पर अगर बनाते हैं, ओके, ये मान के चलो ए है और ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के बाकी पूरा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़ के बाकी पूरा। तो ऐसा कौन सा पार्ट बचा, ए माइनस बी, ये, दिस इज द पार्ट विच इज लेफ्ट आउट, सो इट इज द एक्चुअली द सेम। ऐसा ही लग रहा है ना, तो वही बात है। So this thing is also cleared. A minus B, so is equal to A intersection B. Okay, this fourth one, let me explain. Okay, the fourth one here, A minus B is equal to A intersection B. So like A minus B. ठीक है, पहले तो ये बताइए, A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी, ये अगर A है और ये B है, और A माइनस बी, A में से कंप्लीट B को घटा दिए तो A माइनस बी इज दिस वन, इसमें से A माइनस कर दिए, इसमें से, नाउ दिस इज द थिंग लेफ्ट आउट, तो हमको पता चल गया कि ये मेरा कंप्लीट A है, और इसमें से ये मेरा A माइनस बी था। सो A माइनस, A में से A माइनस बी घटा दिए तो मेरा क्या बचा, दिस इज द थिंग विच इज लेफ्ट आउट। ओके, सो दिस इज द थिंग इज लेफ्ट आउट, दिस इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B है ये, दिस इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, जब सब कुछ वेन डायग्राम से समझ जाओ। ठीक है, फिफ्थ वन, A माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर A माइनस बी बी माइनस ए के इक्वल है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि A जो है वो B के इक्वल है, और A माइनस बी 5 होगा और B माइनस बी 5 होगा। ये तभी पॉसिबल है जब A और B इक्वल है। जैसे अगर A माइनस बी, ए भी यही है और बी भी यही है, तो ए माइनस बी क्या होगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा, और बी माइनस ए क्या होगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ए और बी इक्वल होगा, व्हेन ए विल बी इक्वल टू बी। ओके, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर्ड। नाउ सिक्स्थ वन, ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी
ए और बी का यूनियन इक्वल है ए और इंटरसेक्शन बी के, तब ए और बी इक्वल है। ठीक है। सेवन थिंग, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके। एंड एथ वन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज फाई सेट। कहने का मतलब ये है कि अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये वेन डायग्राम लेते हैं, ये ए है, ये ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बाहर वाला को ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आएगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर ये ए सेट हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, दोनों के बीच में कॉमन देंगे तो कुछ नहीं है, तो फाइव। सो दिस आर द टू थिंग्स विच आर क्लियर। सो दिस इज द लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यू मस्ट लाइक यू मस्ट पे अटेंशन, और कुछ नहीं है। जस्ट इफ यू विल सी लाइक द important thing I have already saw, De Morgan's law. Okay, distributive law. Okay, distributive law union B intersection B in A union C. Okay, इसके बेसिस पे जो हम आपको दो तीन लॉ बताए थे, ओके, तो वो सब पे आपको बस जस्ट यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्लियर लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एंड सेवेंथ का जो आपको स्टार्टिंग में 1 2 3 जो बताए थे। ठीक है, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज विच यू हैव टू पे अटेंशन। ओके, सो दिस ऑल आर द थिंग्स। नाउ लेट अस गो विद सम एग्जांपल्स। ओके, कुछ एग्जांपल से साथ जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चंस में okay, now laws of sets we have seen, like we'll see example. For three events A, B and C, what is the simplest form of writing A intersection B intersection A union B complement intersection A complement union B? ठीक है, सिंपल सा आप कुछ नहीं ले लो, आप यहाँ पर बस साफ साफ देखो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट और A का यूनियन क्या होगा। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, व्हाट इज B कॉम्प्लीमेंट, एक्सेप्ट बी एवरीथिंग। ठीक है, एक्सेप्ट बी एवरीथिंग, बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। ठीक है, बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो ए और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डज इट सिग्निफाई। ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर बाकी सब कुछ और उसमें ए जोड़ दिए। ठीक है, उसमें ए जोड़ दिए। ठीक है, नाउ हियर लाइक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी मतलब ए को छोड़कर बाकी सब कुछ और उसके साथ हम बी जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करने निकले तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। सो यहाँ पर इसको साफ साफ लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। नाउ हियर यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट माइनस यूनियन बी। ठीक है, सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए, ए इंटरसेक्शन और ए यूनियन बी। सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट फाइव। ओके, और ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी, सो ये डायरेक्टली इसका आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी। सो डायरेक्टली वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द आंसर। ओके,
Hope you have got it. If you have not got it, I'll explain you. Wait. Like, question was very simple. Like, question says A intersection B. Okay, A intersection B intersection A union B complement intersection A complement union B. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके जाना है. ठीक है, वी हैव टू टेक इट डाउन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्मेट. Okay, so A intersection B. So A intersection B is nothing but, like, we will substitute it by this. So we'll write it down like A intersection here B, here B. ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. दोनों में A था, सो B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B. B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? B प्लस B को छोड़ के सभी क्या हो जाएगा? U. सो A इंटरसेक्शन U. ठीक है, और इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B. अगेन वी आर सीइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, सो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ओके, A इंटरसेक्शन B. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, हर जगह क्या लगा रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ओके, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 5 यूनियन A इंटरसेक्शन B. 5 प्लस A यूनियन B इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन 5 के साथ यूनियन A इंटरसेक्शन B इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B. So A intersection B is the simplest form. So hope this is the answer. That is nothing but that option is coming as, I think so, that option is coming as D. So D is the option. Okay, so this is the way. Sorry. So this is how we have done. Okay, now some important results. Okay, some important results of this set. Okay, some important results which we'll see here. If like, see, cardinal number of A union B is nothing but cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B. ये ऐसा इसलिए बोल रहा है, like if we are seeing as a Venn diagram, Venn diagram में अगर इसको देखोगे तो A यूनियन B, ये A यूनियन B है. ठीक है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? उसके लिए पहले हम A के एलिमेंट्स देखें, फिर B के एलिमेंट्स देखें. तो आप देखोगे कि हम दो बार ये जो कॉमन जो एलिमेंट्स हैं ये, इसको हम लोग 2 टाइम्स काउंट किए. लाइक एक बार तो A के साथ काउंट कर लिए, दूसरी बार B के साथ काउंट किए. ठीक है, तो हम एक्चुअली 2 बार काउंट किए, इसीलिए एक बार हम इसको माइनस कर देंगे. A इंटरसेक्शन B को एक बार माइनस कर देंगे, ताकि ये हम लोग मतलब मेंटेन करके रखें कि हम एक्चुअली एक ही बार काउंट किए हैं. तो एक बार हम इसको माइनस कर देंगे. सो एक बार हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. सो दिस थिंग इज क्लियर. नाउ सेकेंड वन, n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ A n ऑफ B. ठीक है, इसमें से माइनस नहीं कर रहे हैं. अगर माइनस नहीं कर रहे हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये मेरा अलग अलग है. अगर ये दोनों अलग अलग होगा तो A यूनियन B का मतलब क्या होगा? दिस इज A यूनियन B का मतलब क्या होगा? A और B दोनों यूनाइटेड है. माइनस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है ही नहीं. कॉमन एलिमेंट डू नॉट एग्जिस्ट. अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट और नॉन वॉइड सेट. ओके, नाउ कम हियर 3. ओके,
n ऑफ a माइनस बी, ठीक है, दो सेट ले लिए, a माइनस बी क्या होगा, ये दिस थिंग, n of a minus b is equal to n of a complete n of a minus a intersection b, मतलब ये complete चीज, this complete thing minus this thing, ये इक्वल होगा किससे, साफ साफ पता चल रहा है, ये complete thing minus this thing, इस चीज को हटा दिए तो this one, so these two are seems to be equal, so this thing is also cleared. Okay, now fourth, like fourth, we'll see n of a union b union c is equal to n of a, like इसमें ये तीन सेट वाला बात आ गया, just look a b c, so these are the three sets. Okay, now a union b union c में टोटल कितने एलिमेंट्स इज इक्वल टू n of a, टोटल a में जितने एलिमेंट्स हैं उसको काउंट कर लिए, ठीक है, उसके बाद n of b, फिर b को काउंट कर लिए, फिर n of c, फिर c को काउंट कर लिए, ठीक है, माइनस, क्योंकि दो बार ये काउंट हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये दो बार काउंट हो गया तो एक बार इसको माइनस कर दिए, फिर एक बार इसको माइनस कर दिए, तो एक बार इसको माइनस कर दिए, फिर एक बार इसको माइनस कर दिए, लेकिन ये तो भाई, ये एक्चुअली आप देखोगे तो ये तीन बार माइनस हो गया, ये है कि नहीं, तो ये तीन बार माइनस हो गया तो इसको एक बार हम लोग ऐड कर देंगे, ये कम इस पोर्शन को जो तीनों में है, सो इसको एक बार ऐड कर दिए, ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेंटेन द number, cardinal number of sets. Okay, so these are some of the important results which we have found it out. Okay, so you have to pay attention there. So here, number of elements in exactly two of sets a b c, so n of a intersection b, n of b intersection c, n of c intersection a, minus 3 times of 3n of a intersection b. Okay, so number of elements in exactly, so number a union a, now now see here, n of a complement union b complement is equal to n of a complement, सॉरी, n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब a कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. ओके, सी हियर, यूनियन इज टर्निंग इनटू इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जो अंदर था वो बाहर चला गया, ठीक है, सो आपको इससे एक और रिजल्ट पता चला कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट हम अंदर लाते हैं तो आपको पहले बताए थे कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, और n ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट अगर बोलेंगे तो जो इंटरसेक्शन है वो वैसे बदल जाएगा, ठीक है, ये हम लोग उस समय पढ़े थे डी मॉर्गन्स लॉ में. ये कौन से लॉ में पढ़े थे, ये डी मॉर्गन्स लॉ में हम लोग पढ़े थे, डी मॉर्गन्स लॉ में ये पढ़े थे. So this is also cleared. Okay, so now we'll, n of a complement is equal to, पूरे a complement क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस a, वही है, a इंटरसेक्शन b complement क्या होगा, n of a माइनस a इंटरसेक्शन b. ओके, इसको भी देखो, b complement क्या होगा कि b को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो b को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या आएगा, तो n of a इंटरसेक्शन b. ओके, सो is nothing but you'll easily do. Okay, so we'll start with like some questions. Okay, some questions we'll solve of this and then we'll go on to the next thing. Like, look here,
look here. In a group of 500 students, there are 475 students who speak Hindi. ठीक है, 200 can speak Bengali. What is the number of students who can speak Hindi only? ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि टोटल हमको पता है कि दो ग्रुप है. ठीक है, दो ग्रुप है. N of A मतलब let us see here. N of H जो है वो हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग. और N ऑफ B ये क्या है, बंगाली स्पीकिंग. इन दोनों का हमको यूनियन पता है. कितने हैं, 500 स्टूडेंट्स. ठीक है, टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं. इसमें से 475 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं. मतलब 475 जो है वो हिंदी बोल सकते हैं. सो एन ऑफ एच भी हमको पता है 475. हमको यही पता है कि बंगाली 200 बोल सकते हैं. अब हमको ये पता करना है कि एक्चुअली सिर्फ हिंदी कितने बोलते हैं, लाइक ओनली हिंदी, मतलब नॉन बंगालीज. ठीक है, तो एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमको जानना है. ठीक है, यही जानना है कि बंगाली कौन कौन नहीं बोल सकते, तभी हमको पता चलेगा कि हिंदी कितने बोलते हैं. ठीक है, तो हमको सबसे पहले इसका इंटरसेक्शन जानना होगा कि हाउ मैनी स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. मतलब हमको सिंपली जानना है इंटरसेक्शन बी. तो बाय फॉर्मूला हमको पता है एन ऑफ यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ बी. ठीक है, माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन बी. ओके, so this we know. Oh my god, this technical glitch. Okay, we'll overcome here. Okay, so now see, n of h union b हमको पता है टोटल 500 है. ठीक है, इस ये भी हमको पता है 475 है, यही पता है 200 है. हमको ये नहीं पता ये लैंग्वेज दोनों कौन कौन बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे उस साइड. सो विल शिफ्ट दैट टू दैट साइड. सो n of h intersection b is nothing but 475 plus 200 675 minus 500. So n of h intersection b is 175. मतलब 175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. ठीक है, सो 175 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं. ठीक है, 175 स्टूडेंट्स. सो हियर व्हाट विल डू, will minus like now I know, now I want कि only हिंदी. ठीक है, only हिंदी स्पीकिंग. तो जितने हिंदी बोलते थे दैट इज 475 में से 175 घटा देंगे. सो टोटल 300 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे आएंगे जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, मतलब बंगाली नहीं जानते हैं. ठीक है, सो this is how we do all the problems. Okay, so now like look here, in class of 100 students 70 have taken science, 60 have taken mathematics and 40 have taken both science and mathematics. Okay, consider the following statements. Okay, consider the following statements. The number of students who have taken science or mathematics is 10. Okay, science or mathematics is 10. The number of students who have taken both science and mathematics is 10. ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट में से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ये पहले बोल रहा है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 7 और ठीक है 2 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है 670 साइंस है, तो नंबर ऑफ साइंस टेकिंग स्टूडेंट्स कितने हैं, 70. नंबर ऑफ मैथ्स टेकिंग
लाइक 70 हैव टेकन साइंस, 60 हैव टेकन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने लिए हैं? 60। साइंस और मैथमेटिक्स और टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स? एस यूनियन एम कितने हैं? साइंस यूनियन 100। तो बोला जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स, लाइक अब इसमें से निकालेंगे हम कि एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स दोनों लिए हैं, लाइक बोथ। हाउ? सो इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो बाई फार्मूला वी यूज टू गो हियर एन ऑफ एस यूनियन एम, साइंस और मैथमेटिक्स लेने वाले, सो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। ठीक है, तो एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम कितना होगा? सो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम, यहाँ पर माइनस एस, एन ऑफ एस यूनियन एम। ओके, सो एस इंटरसेक्शन एम हमको पता है नहीं है, सो एन ऑफ दोनों कितने लिए हैं नहीं पता। एन ऑफ एस पता है, 70 स्टूडेंट्स हैव टेकन साइंस, 60 हैव टेकन मैथ्स और टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। सो 70 प्लस 60 130 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 30। सो 30 स्टूडेंट्स जो हैं मेरे वो मैथ्स और साइंस दोनों लिए हैं। 30 स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ्स एज वेल एज साइंस। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स। यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखते हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस और मैथमेटिक्स, साइंस या मैथमेटिक्स, साइंस लिया है या मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। या तो साइंस लिया है या तो मैथमेटिक्स लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 10। ये तो गलत हो गया, 30 स्टूडेंट्स मेरे निकले हैं जो साइंस लिए हैं और मैथमेटिक्स भी लिए हैं। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन साइंस एज वेल एज मैथमेटिक्स। सॉरी, यहाँ पर तो दिया ही है कि 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स, 40 हैव टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये भी हमको पता है कि 40 है मेरा। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग। ओके, विल गो हियर। इन क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100। 70 हैव टेकन साइंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100। ओके, number of taken students which have taken science is 70, number of students which have taken mathematics is 60, number of students those who have taken science as well as mathematics is 40। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स लाइक दोज हु हैव टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो एन एस यूनियन एम हम निकालेंगे, तो एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एम। ठीक है, तो एन ऑफ एस कितना हो जाएगा? 670, 60 माइनस 40 तो 90 स्टूडेंट्स ऐसे आएंगे मेरे, दोज हु हैव टेकन साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये 90 स्टूडेंट्स मेरे ऐसे आए जो साइंस और मैथमेटिक्स लिए हैं, साइंस और मैथमेटिक्स, वो 90 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो 90 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ, ये मेरा 90 स्टूडेंट्स हैं दोज हु हैव टेकन। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन साइंस और मैथमेटिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट टेकन बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब साइंस और मैथमेटिक्स कितने लिए? साइंस, आइदर साइंस लिए या मैथमेटिक्स लिए, वो कितने हो गए? तो 100 में से जो इनको नहीं लिए दैट इज 10, ए यूनियन बी को नहीं लिए। ठीक है, आइदर साइंस और मैथमेटिक्स इज दैट इज 10। ठीक है, सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ओनली वन।
Okay, so only one. So this is how we used to solve. Okay, now some of the practice problems which will look here, and our job will be that you must do this all. Okay, total number of elements in a power set of A containing 15 elements. हम आपको क्या बताए थे? What is a power set? Power set is nothing but power set is just the total number of subset. Okay, जो subset होते हैं वो सारे सबसेट को एलिमेंट्स के रूप में एक ब्रैकेट में रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड पावर सेट. सो पावर सेट 15 एलिमेंट्स हैं, तो जितने सबसेट होते हैं उतने पावर सेट होंगे, उतने पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे. सो टू टू पावर ऑफ 15. ठीक है. ए, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट? प्रॉपर सबसेट 2n-1 इक्वल. ओके, नाउ हियर if a equal to p like 1 comma 2 where p denotes the power set, then which of the following is correct? ठीक है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? a comma 2 is a subset of a, proper subset of a. Okay, a comma 2 is a proper subset of a. Tell me. Yeah, one belongs to a, 5 does not belongs to a, 1 comma 2 belongs to a. Which of the following is correct? This one. Why? 1 comma 2 is not a proper subset of a. proper subset क्या होता है कि वो एलिमेंट नहीं होता है. प्रॉपर सबसेट में इसी को माइनस कर देते हैं, याद आया होगा. ठीक है, अगर प्रॉपर सेट 1 कॉमा 2 है तो प्रॉपर सबसेट में 1 कॉमा 2 नहीं आएगा, वेरे सबसेट में ही आएगा. तो ये तो पहले ही गलत हो गया, प्रॉपर सबसेट है नहीं. 1 बिलोंग्स टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग, 5 बिलोंग्स टू एवरीथिंग. ओके, 1 बिलोंग्स टू ए. ओके, 1 कॉमा 2 1 बिलोंग्स टू ए, ये एक ब्रैकेट में है ही नहीं, ब्रैकेट में नहीं है तो ये भी गलती. सारे सबसेट्स ब्रैकेट्स में होते हैं. ठीक है, सो दिस वन इज द राइट. Okay, if the cardinality of a set A is 4, if cardinality of a set A is 4 and that of set B is 3, what is the cardinality of set A delta B? Okay, what is the cardinality of A delta B? यहाँ बस साफ साफ the sets A और B, मेरे को सेट A और B का बस कार्डिनलिटी दिया है, मेरे को सेट नहीं दिया हुआ है, तो A डेल्टा B कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर सेट दिया होता इसके लिए जरूरी क्या है, मेरे को सेट मस्ट बी गिवन. सेट अगर नहीं दिया हुआ है तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, सो लाइक दिस इफ यू विल सॉल्व इट, so you will go one by one and you will solve it, then like in next class we will solve all the problems. Okay, so up to here whatever we have done, is it clear? If not, reverse back the lecture, go back to the lecture and just clear it. Okay, some important laws which you have seen, okay, this all need to be cleared. And if you'll like if you'll go with the flow, you will be able to solve all the questions, and whatever the questions will not be solved, please comment below so that I'll come with a new lecture of like those problems. Okay, like before going, let us do this question. 7th number, 6th number. The shared region in the following is, like this is a shared region. How we can write? Like go one by one. A intersection B union C. B union C का A intersection नहीं होगा, ये होगा. So this is wrong. Okay, now A minus B intersection C. B intersection C is this. A minus ये सब भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है, so ये भी गलत. Now second thing, A union B intersection C. A union तो A सेट और इसके साथ यूनियन B intersection C, ये कंप्लीट आना चाहिए था, ये भी गलत. Now A minus B union C. So B union C is complete this और A minus this. So this is the right.
ए में से बी यूनियन सी को माइनस कर दिए, मतलब दिस इज कंप्लीट ए, दिस कंप्लीट है, इसमें से बी यूनियन सी को माइनस कर दिए, तो दिस इज द थिंग विच इज बीन लेफ्ट आउट. Okay, so this is the right D. So if you'll go, like if you'll see all the Venn diagrams, whatever, you'll be able to solve all the questions. Okay, like if you see ninth question here, n of e is 42. E is nothing but your complete universal set. Universal set में कितना हो गया 42. Okay, this complete में 42 हो गया. n of a is 15. complete a में कितना है 15. complete b में कितना है 12. ठीक है, ए यूनियन बी कितना है, ए और बी मिला के 22 है. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 15 + 12 एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. नहीं होता है, इसमें 15 है, इसमें 12 है, इस टोटल में 22 है. ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, ऐसे ही 15 और 12 और 22 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 27 - 22 दैट इज 5. तो इस कंप्लीट में कितना है 5. ठीक है, then the area represented by shaded portion above in above Venn diagram is, अब shaded portion का निकालना है, तो टोटल 42 है. तो ये कंप्लीट चीज आपका क्या है, ए यूनियन बी आपका कितना है ए यूनियन बी कितना है 22 है, तो 42 - 22, ये 42 था, इसमें से 22 और प्लस ये भी शेडेड रीजन है तो 5. ठीक है, तो 42 में ये हो गया 20 और प्लस 5 इक्वल्स टू 25. सो दिस इज द आंसर. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत. ए यूनियन बी कितना है, ए यूनियन बी है कितना 22. ये शेडेड रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना 5. ये शेडेड रीजन क्या है, तो एन ऑफ ई माइनस ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी कितना हो जाएगा आपका, अब प्लस इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25. ओके, क्लियर, any doubt? So like this you do all the questions, you go ahead with all the questions. If you will not be able to get it, one more lecture will be uploaded and you will be able to solve those. Okay, thank you.